Hello everyone, welcome to our social science class. Students, today we'll start our second chapter of class 10th Democratic Politics, that is Federalism. Our first chapter was power sharing, and if you have remembered, in power sharing we had studied about the variations or the differences in the social group and how it was accommodated in the two countries, that is Belgium and Sri Lanka, right? एंड श्रीलंका में जो उन्होंने तरीका अपनाया था, बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज सिविल वॉर इन द कंट्री, बट द वे इट वाज accommodated in Belgium, there was complete peace. Why? Because 4 amendments were done there. If you have remembered, 4 amendments were done in their constitution which gave importance to all the social group, and these social groups were on the basis of language. राइट तो उन्होंने किया क्या था, उन्होंने लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो है अलग अलग उनको पावर्स दी थी. देयर वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम सेंटर टू स्टेट. ओके, एंड व्हाट इट शोड, द बेल्जियम एकोमोडेशन शोज अस द फॉर्म ऑफ फेडरल एंड अ पावर शेयरिंग टाइप ऑफ गवर्नमेंट. तो उससे हमें पता चला कि कैसे by sharing the power we can accommodate any kind of problem in our country, how the power sharing is helpful to run a country peacefully. The Belgian form of government shows us the advantages of the power sharing. Of course, देखो advantages ही थे बेटा, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ पीसफुली हो गया था. जबकि जब श्रीलंका में क्या था, एक मेजोरिटेरियनिज्म आया था. वहाँ पे जो सिन्हाला गवर्नमेंट थी, सिन्हाला लैंग्वेज के जो लोग थे, दोज वर in majority and they were dominating the nation, and that is why people were not satisfied. जो तमिलियंस थे, they were not satisfied. तो क्या किया था, there was civil war. तो it shows us the advantages. The power sharing among the communities brings up the peace and acceptance with the government without conflict. So somewhere this power sharing is the base of federalism. ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा. नाउ लेट अस सी दैट व्हाट द फेडरलिज्म इज. इफ विल टॉक अबाउट फेडरलिज्म, फेडरलिज्म मीन्स it is a system of government in which the power is divided between a central authority and the various constituent unit of the country. Now what are these constituent units? If we'll take the example of India, we have nation as a whole, but our whole nation is further divided into states, right? We have 28 states. पहले 29 थे, but now we have 28. Now Jammu Kashmir is not a state. So these states are the sub-constituent units of our nation. Okay? तो I hope आपको constituent का meaning clear हो गया होगा. So the division of power from center, यानी from top to bottom, that is called federalism. Now this federalism can be performed in 2 ways. Federalism बेटा 2 तरीके से जो है किसी भी कंट्री में फॉलो होता है. The first one is unitary system, या we can say that these are the types of federalism. The first one is unitary system and second one is federal system. Now what is the difference between two, या what is the meaning of the two systems? Let us understand it. The first one is, here you can see the comparison between the both. Unitary system. Unitary system, there is only one level of government, but in federal system there will be more than one level of government. क्योंकि of course जब distribution of power होगा तो सेंटर के नीचे एक और लेवल गवर्नमेंट का बनेगा, तभी तो वो उस लेवल पर जो है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा. लेकिन यूनिटरी में सारी पावर, मेन पावर्स किसके हाथ में होंगी? सभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होंगे. सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द लोकल गवर्नमेंट्स. ओके, यहाँ पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लोकल गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकती है टू फॉलो एनी पर्टिकुलर रूल्स, रेगुलेशंस और एनी ऑर्डर in their provinces or states. But here central government, federal system में क्या है, central government does not order the local governments. Then third one is no power to local government. तो unitary system में क्या होगा, local governments को बहुत ज़्यादा powers नहीं होती, उनको कौन से ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं, विच विल बी पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है उनको रूल करेगी, वही उनको ऑर्डर्स देगी, वही उनको अपने एरिया में परफॉर्म करना पड़ेगा. बट here state governments have their own powers. स्टेट गवर्नमेंट की क्या है, अपनी खुद की पावर्स हैं. कुछ उनको ऐसी
अनलिमिटेड आप कह सकते हो, या इंडिपेंडेंट पावर्स उनको मिली होगी विच दे कैन परफॉर्म ऑन देयर ओन बेसिस। आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, अब यहाँ पर क्या है, जो लोकल गवर्नमेंट है दोज आर आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जो भी करेंगे दे हैव टू गिव देयर अकाउंट टू द central government or the union government. But in federal system, the free federal system, state government is not answerable to the central government. तो यहाँ पे अभी हमने दोनों का डिफरेंस देखा। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बेटा देखेंगे वर्ल्ड का पूरा मैप है विच इज शोइंग अस द कंट्रीज विच आर फॉलोइंग द फेडरलिज्म in two different ways. The countries with blue color is showing the unitary states. Unitary state means where the more powers are in the hand of the central government, and the green color shows the countries which are sharing the complete independent power with their sub-constituent units. तो here you can see unitary government की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया जो है हमारा वो फेडरल में आएगा, यूएसए हमारा फेडरल में आएगा, है ना। तो देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज विच आर बीइंग adopted by the different nations. It is depending upon the type of provinces in their countries, जिसके बेसिस पर कि वो डिसाइड करते हैं कि which way they have to follow. Now the next topic is की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। नाउ अब आप किस तरह की सरकार को या गवर्नमेंट को आप कहेंगे कि इट इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट। सबसे पहली बात, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कि 2 लेवल्स तो होने चाहिए। देखो फेडरलिज्म में मेन क्या है बेटा, पावर शेयरिंग होनी चाहिए, यही तो हमने देखा है ना, कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए। तो पावर शेयरिंग होगी तो क्या होगा, पावर शेयरिंग कहाँ करेगी, जब 2 लेवल होंगे तभी तो पावर शेयरिंग नेक्स्ट लेवल पर होगी। सो 2 लेवल्स तो पक्का होने चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बेल्जियम का एग्जांपल देखो, वहाँ पे तीसरे लेवल की गवर्नमेंट भी थी। कौन सी थी तीसरे लेवल की गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि लैंग्वेज के बेसिस पर बनी थी, है ना। तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, या इसको हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, सेल्फ गवर्निंग बॉडी भी बोल सकते हैं। तो देयर शुड बी मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम एनी नंबर ऑफ levels of the government so that power could be shared. So what are the other key features? Different government govern the same citizens, but each tier here means level, each tier has its own jurisdiction. तो जो हर लेवल की गवर्नमेंट होगी वो अपने अपने लोगों को, यानी जो उनके एरिया में आते हैं वो उनको क्या करेंगे, गवर्न करेंगी, उनको उनके ऊपर शासन करेंगी, उनके लिए काम करेंगी, और बट उनके अपने एरियाज लिमिटेड होंगे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पर्टिकुलर डिफाइंड एरियाज़ में काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपने डिफाइंड एरियाज़ में काम करेगी, लोकल गवर्नमेंट अपने डिफाइंड एरियाज़ में काम करेगी, जो पावर्स उनको इंडिपेंडेंटली मिली हुई हैं। द jurisdiction ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स एंड गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो these countries would surely have कॉन्स्टिट्यूशन, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और इन सब की पावर्स क्या होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि सेंट्रल लेवल ने क्या क्या ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, स्टेट ने क्या करनी है, लोकल ने क्या करनी है, कम्युनिटी गवर्नमेंट ने कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है, ताकि बीच में उनके क्लैशेस ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। नेक्स्ट, द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिटरली चेंज्ड बाय 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर कुछ चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई अमेंडमेंट्स करनी है, दो शुड नॉट बी डन बाय एनी 1 लेवल। देखो जब पावर शेयरिंग है तो कॉन्स्टिट्यूशन कि चेंजेस में भी क्या होगा, सभी लेवल्स का कहीं ना कहीं योगदान होगा, उनकी भी पार्टिसिपेशन होगी। ऐसा नहीं है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया चेंज करना है तो हो गया, नहीं। अब हम लोग इंडिया की बात करें तो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो है सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं विच बिलोंग्स टू डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट प्रोविंसेस। तो वो सभी जो है वहाँ पर पार्ट हैं, उन सबकी पार्टिसिपेशन के बाद ही कोई भी बिल जो है पास होता है और किसी भी तरह की अमेंडमेंट या कोई नया कानून बनता है। Next is the highest court acts as an umpire if disputes arise between different levels of government. अगर स्टेट और सेंट्रल लेवल के बीच में या 2 स्टेट लेवल्स के बीच में किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, किसी भी चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट होती है, तो फाइनल डिसीजन किसका माना जाएगा, फाइनल डिसीजन माना जाएगा हाईएस्ट कोर्ट। हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं दैट इज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है बेटा। इंडिया में अगर हम लोग हाईएस्ट ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं तो दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट एंड दैट इज़ इन दिल्ली।
Next, the constitution ensures its financial autonomy to all levels of government. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के साथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है, ताकि कुछ हद तक हर लेवल इंडिपेंडेंटली अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज गेन कर सकें एंड दे कुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन देयर पर्टिकुलर एरियाज. सो दीज वर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. अब अगर हम लोग बात करते हैं द टू वेज इन विच फेडरलिज्म वाज एडॉप्टेड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, जो हमने की फीचर्स किए हैं दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. एंड अगेन द टू रूट्स और द टू वेज, द टू टाइप्स in which the federalism can be performed. The first one is coming together. You can see here coming together. दूसरा होता है बेटा holding together. The second one is holding together. हम ये दोनों ही जो है डिटेल में करेंगे. तो first we will discuss the coming together form of federalism. Coming, come मतलब आना, यानी जब अलग अलग स्टेट्स या छोटी छोटी कंट्रीज मिलकर एक बड़ा नेशन क्रिएट कर रही हैं. देखो, स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, यानी जब छोटे छोटे राज्य क्या कर रहे हैं मिलकर. अभी तक वो लोग एक नहीं थे. अब हम लोग बात करें, अमेरिका एक अलग कंट्री है, कनाडा एक अलग कंट्री है, मैक्सिको एक अलग कंट्री है, लेकिन इन सबको हम कंबाइन करके क्या बोलते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इन तीनों कंट्रीज़ ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि हम सब लोग मिलकर एक नेशन बनाएंगे. तो दैट इज़ कमिंग टुगेदर, अपनी मर्जी से साथ आना, मिलना और गवर्न करना. दे रिटेन देयर आइडेंटिटी एंड सॉवरेनिटी. तो ये क्या कर रहे हैं, अब ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स यहाँ पर मतलब है बेटा नेशन, स्टेट्स का मतलब यहाँ पर राज्य नहीं है, देश. तो अब ये जो अलग अलग स्टेट्स हैं, जैसे अब मैंने अमेरिका का एग्जांपल दिया था, तो अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अब ये क्या है, ये एक कम्प्लीटली दे आर यूएसए, बट इन सबकी अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स है. तीनों ही कंट्रीज़ एक दूसरे की गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर नहीं करती. दे आर वर्किंग इन देयर पर्टिकुलर कंट्रीज इंडिपेंडेंटली. ओके, तो दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, दे आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर, but they are working together. All states have equal power. तो ऑफ कोर्स अब जब सभी इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं तो सभी स्टेट्स को क्या है, इक्वल पावर है, सब अपने नेशनल लेवल पर काम कर रहे हैं. एग्जाम्पल है हमारे पास यूएसए, यू कैन सी हियर, दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. देन स्विट्जरलैंड, दिस इज द मैप ऑफ स्विट्जरलैंड. एंड देन ऑस्ट्रेलिया. तो दीज आर द नेशंस इन विच स्मॉल कंट्रीज come together and form one big nation. Okay, the second one is holding together. अब इसका डिफरेंस ध्यान से समझेंगे. holding together, hold क्या होता है बेटा, पकड़ना. अब पकड़ेंगे हम किसको, जो चीज़ हमारी है. अब कोई अपनी दूसरी चीज़ को तो, कोई अपने दूसरे की चीज़ को तो हम नहीं पकड़ सकते, उसके ऊपर तो हम लोग अपना जो है ये नहीं दिखा सकते कि ये मेरी है. तो होल्ड, अपनी चीज़ को पकड़ कर रखना. तो यहाँ पर क्या है, अ कंट्री divides its power between the constituent states and the national government. एक कंट्री ही अपने आप को क्या कर रही है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. वहाँ पर क्या था, छोटी छोटी कंट्रीज मिलकर एक देश बना रही है, लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या है, एक बड़ी नेशन अपने आप को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर्स. और सबके पास सेम पावर्स नहीं होती. Few provinces may have more powers, others may have less powers. कैसे है वो भी हम देखेंगे. All states in Indian Union do not have identical powers. अब अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो भी सभी स्टेट्स की जो है इक्वल पावर्स नहीं हैं. अब तो देखो जम्मू कश्मीर का इशू थोड़ा सॉल्व हो गया, अदरवाइज जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर्स मिली हुई थी. ईस्टर्न स्टेट्स में चले जाएंगे आप तो नागालैंड को जो है स्पेशल पावर्स मिली हुई हैं. ठीक है, तो इट डिपेंड्स फ्रॉम एरिया टू एरिया कि वहाँ का कल्चर या वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, अकॉर्डिंगली दे गेट देयर राइट्स और द पावर्स. सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन एंजॉय वेरी लिटिल पावर. अब स्टेट्स को तो सभी को फिर भी ऑलमोस्ट इक्वल पावर है एक्सेप्ट फ्यू, लेकिन अगर हम लोग स्टेट्स को कंपेयर करते हैं यूनियन टेरिटरीज से, तो यूनियन टेरिटरीज आप सबको पता है, ये जो हाईलाइटेड है बेटा मैप में, दीज आर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया. लद्दाख जो कि अभी रिसेंटली बना है, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली,
then here is Lakshadweep, and here is Andaman and Nicobar, and the last one is Puducherry. So these are the union territories which are been governed by the central government. ठीक है, यहाँ पे मेयर्स होते हैं, लेकिन इनके ऊपर बेसिकली पावर किसकी काम कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर काम कर रही है. सो इन दिस वे सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन एंजॉय वेरी लिटिल पावर. जैसे अब स्टेट्स के पास पावर ज़्यादा है, स्टेट्स का अपना सीएम है, वो इस एरिया के रिगार्डिंग सारी जो भी डिसीजन लेने होंगे जो चीफ मिनिस्टर होगा वो लेगा, गवर्नर होंगे वो आपस में मिलकर लेंगे. लेकिन यूनियन टेरिटरीज के रिगार्डिंग डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी. यानी यूनियन टेरिटरीज को उतनी पावर नहीं है जितनी कि स्टेट्स को है. इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. एंड ऑफ कोर्स बेटा, किसी भी तरह का, अब देखो जम्मू कश्मीर का जब इशू सॉल्व हुआ, आज भी इशू चल रहा है कि 370 जो है वो वापस लो, हमें दोबारा हमारे जो स्पेशल रूल्स थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे इश्यूज उठा रही हैं. तो इट इज़ नॉट ईजी. अभी ऐसा क्यों किया गया? वाई दिस इज़ होल्डिंग टुगेदर पॉलिसीज अडॉप्टेड इन इंडिया? क्योंकि इंडिया ऑलरेडी एक कंट्री इतनी बड़ी है इन कंपैरिजन टू अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर्स, कि इसका एरिया, इट इज़ हैविंग अ वेरी वास्ट एरिया. तो इसलिए हुआ क्या, इंडिया के प्रॉपर गवर्निंग के लिए क्या किया गया, उसको छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया. एट द बिगनिंग स्टेट्स कम थे, फिर धीरे धीरे उन स्टेट्स को और ज़्यादा बढ़ाया गया. सम टाइम ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, सम टाइम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर, देयर ट्रेडिशन, सम टाइम ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी. जो है एक राज्य में से दूसरा राज्य निकलता चला गया, स्टेट्स जो है डिवाइड होते चले गए. पर क्यों किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिवीज़न क्यों की? वो इसलिए की ताकि वो अपने देश को बांध कर रख सकें, एक रख सकें, है ना. अभी अगर परिवार में क्या होगा, अगर जो फैमिली का हेड होगा वो सिर्फ अपना ही शासन चलाएगा, तो फैमिली मेंबर कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट हो जाते हैं. क्या है, अपनी चलाते हैं, जो करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, हमें तो सुनते ही नहीं है, होता है ना ऐसा. तो हेयर कंट्री में भी क्या है, कंट्री में भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दैट इज़ द हेड ऑफ द नेशन. तो उसको सबके विशेष का ध्यान रखना ज़रूरी है. तो क्या करते हैं वो इसलिए कुछ पावर्स उन्होंने स्टेट्स डिवाइड किए, स्टेट्स के सीएम बनाए गए, उनको उनकी पावर्स दी गई. अगर और स्टेट्स बनाने की ज़रूरत पड़ी, देखो पंजाब में से हरियाणा निकला, हिमाचल निकला, यहाँ एमपी और उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड निकल गया, यहाँ से एमपी में से झारखंड निकला, छत्तीसगढ़ निकला. तो लोगों को अलग अलग बेसिस पर हमें स्टेट्स अपने और ज़्यादा डिवाइड करने पड़े. क्यों करने पड़े? ताकि ये हमसे खुश रहें और मिलकर रहें. एंड दैट इज़ सक्सेसफुल इन आवर कंट्री. So these were the two ways in which federalism is performed worldwide. Okay, beta. So here our today's topic is finished. We'll continue the chapter in our next class. Till then, all of you take care and have a good day.